सपने देखने वालों को लोग पागल कहते हैं और पाने वालों को महान। कर दोस्तों, आज मैं अपना दूसरा शो शूट करने के लिए निकल गया हूँ, टाइम विद अमर, बातों बातों में। और आज की जो हमारी गेस्ट है, उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बहुत से अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स, ऑनर्स अपने नाम कर चुकी हैं। फाउंडर, डायरेक्टर, इनोवेटर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स एंड कंसल्टेंट स्पाइल कपूर। तो मिलते हैं मिस पायल कपूर जी से, जो आज हमारे साथ हैं। मैम प्लीज़ वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी क्रिएटिव माइंड है जो खाली दीवारों को कहानियों में बदल देती हैं। मीट मिस पायल कपूर। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू अमर जी, प्लेजर। मैम, वैसे तो आपके इतने हमने सर्टिफिकेट्स और वो अवार्ड्स देख चुके हैं जी। थोड़ा हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आप अपने तरीके से बताएं शुरू से कि कैसे आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो आपने शुरू करा काम, तो कैसे आप इंस्पायर हुए, कहाँ से आपने अपना सफ़र शुरू किया? जी, मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड की, माय फादर वाज इन द इंडियन नेवी एंड सो इट वाज अ ट्रांसफरेबल जॉब एंड ऑफ कोर्स बट मोस्टली स्कूलिंग सारी दिल्ली से करी, कामल कॉन्वेंट से, एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कामल कॉन्वेंट। उसके बाद मैंने 3 साल, हमारे टाइम पे क्या होता था कि इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे, इतनी सारी चॉइसेस नहीं होती थी, तो मेरा ये था कि कुछ भी करके एक जल्दी कमाना शुरू करना चाह रहे थे जी। So as a result, options were commercial design, fashion design, because I had arts in school, and I thought I wanted to do political science because that was something I was very, very, inclined towards. Yeah, so that was a never-ending kind of a thing, and I was very clear that I wanted to kind of get into the mainstream line very, very quickly. So architecture was something that kind of always inspired me, and उन दिनों architecture इतना नहीं था, गिने चुने 2-3 हमारे दिल्ली में एक ही कॉलेज होता था। So the next was interiors. जब हमने join किया तो we were like close to over 100 and some odd students, and by the time we graduated we were a handful of 30-35. So I started off like that, and I thought कि चलो 3 साल हैं, and जो किया 3 साल, somewhere it caught my interest, and I felt it is a good line, I should pursue it. And उसके बाद then I wanted to do my masters, wherein I wanted to specialize. I just didn't want to, categorize myself as just being a stylist or an interior decorator or interior designer. So I decided to get into specialization of hospitality and commercial design. Okay. Hotels was something that always kind of intrigued me, because it's not like a home. It is, there are a lot of other things which are there. You need to do a lot of hand holding in terms of back house operations and F&B and how the logistics and how the space flow works. And of course styling, and so it kind of embodies everything. Okay. And over a period of time, then what happened was I started doing a lot of architectural projects. I started doing landscaping along with it. So then eventually what happened, virtue of now being in the industry for over 3 decades, I started kind of doing it's like a one-woman show. And over a period of time, I realized that I'm not really cut out to be just a consultant. I rather like to get into the mud, cement side of the whole thing. So right from the foundation to the last ashtray is something that I kind of like to get involved with. And that's exactly what happened, because I built a team. So today I have a workforce of around 300 people. Okay. So right down from the civil side to, electricians, plumbers, MEP, HVAC, structure, right down to the furniture, to the soft fit outs as we call them, the styling. So we are a one-stop shop. So we do everything. So when you give us a place, right from designing actually. So I have a studio where I have my architects and my designers working for me. Along with them I have people like my structural team. Then my MEP team, which is mechanical engineer plumbing. So we take care of the plumbing, the SLD drawings, the electrical drawings, the footing drawings, the structural drawings. And then we kind of build up, and then of course once the raw structure is up, then it's all about your RCP, your electricals, your flooring, your the works. उधर से हमने शुरू किया, and then मेरी teams अब कई तो ऐसी हैं जो 3rd generation मेरे लिए काम कर रही हैं.
Okay. तो वो somewhere along the way एक स्टेज आई कि I was only doing palace properties. So virtually जितने रजवाड़े हैं राजस्थान के, उमेद भवन पैलेस, बालसमंद, सरदार संवंत, हरिनिवास पैलेस, बीकानेर, जैसलमेर, ये उदयपुर, जोधपुर, of course, और in a big way. historical. Yeah, so वो एक स्टेज आई कि I was only doing that. फिर एक स्टेज आई I was only doing schools. So GD गोयनका स्कूल से शुरू किया, फिर GD गोयनका वर्ल्ड स्कूल, ITL, DPS इंटरनेशनल वगैरह वगैरह ये सब चलता रहा. ठीक है. बट क्या हुआ कि मेरे को लगा somewhere along the way that I'm being branded as a very historical Rajwada type of a kind of a feel, heritage colonial kind of a feel, though it was a pleasure working with most of the royalty because there's a lot to learn from them. So I wanted a kind of a shift, but फिर क्या हुआ 95 में मेरे को Palace on Wheels मिल गया. I won the project. आज जब आपको Palace on Wheels मिल गया तो 17 जो रॉयल फैमिलीज थी, सभी का एक रेक बनानी थी 2.5 किलोमीटर, और वो टर्न की प्रोजेक्ट था. तो वर्चुअली, और वो बनाना भी एक टाइम बाउंड पीरियड में था. ये 95 में हमने मीटर गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्जन किया था एंड ऑफ द रेलवे ट्रैक. So we won it at the all India level. तो अभी ये ब्रॉड गेज पे चलती हैं ट्रेन? जी, ये सारी ब्रॉड गेज हो गया था कन्वर्जन 95 में. Okay. फिर ट्रेन्स का काम आना शुरू हुआ तो फिर सभी कुछ आने लग गया, ट्रेन्स. फिर मैंने शताब्दी बनाई 98 में, जो चंडीगढ़ की शताब्दी है. फिर उसके बाद वो कौन सी है जो बड़ी फेमस ट्रेन है आपकी, मेरे को नाम ही भूल गया. सांबर नहीं, सांभर तो बाद में. सांभर इज अ लोकोमोटिव इंजन, इट इज नॉट अ दिस थिंग. राजधानी. सो राजधानी के AC, फर्स्ट AC के कूपे हमने डिज़ाइन किए कि भैया कैसे होने चाहिए, बिकॉज VVIP टिकट्स वर they were kind of sprucing up and they were increasing the tariffs and stuff like that. तो वो किया. फिर then I kind of shifted. Homes I started doing, तो वो बड़े luxury, opulent kind of huge projects started coming in, which is fine, but my thing was always stuck towards hospitality. So अब करते अब 37 years हो गए, तो अब यही काम कर रहे हैं. तो आप अपने डिजाइन स्टाइल को कैसे डिफाइन करते हैं मैम? देखिए, मेरा डिज़ाइन स्टाइल इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी क्लासिक एज ऑफ नाउ. आई एम नॉट इनटू अ वेरी मॉडर्न एंड काइंड ऑफ अ थिंग. ऑफ कोर्स अगर द नीड बी, लाइक अगर बच्चे का कमरा डिज़ाइन कर रहे हैं, टीनेजर, आई कांट गिव हिम क्लासिक. It has to be very, it has to be modern, but I will always throw in a touch of classic piece in it. So if there is a brief that we want the place to be like that, but the best projects which I've worked with are projects where client has shown in me utmost confidence, and he says आप करिए जो आपको ठीक लगता है, but मेरे को ये चाहिए. तो उसके अंदर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी दुगनी हो जाती है और हमें बहुत अच्छी तरीके से वो एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है. बट जो भी है, प्रोजेक्ट का जो ऑफ कोर्स एसेंस है और जो बैकबोन है, वो सबसे पहले डिज़ाइन है, विच आई ऑलवेज टेल क्लाइंट्स कि आप पेपर पे जितना मर्जी चेंज कर लीजिए, लेकिन एक बार ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो प्लीज़ मत करिए. तो कई क्लाइंट्स हैं जिनको ड्राइंग्स नहीं समझ आती, बिकॉज हमारी ड्राइंग्स बहुत डिटेल्ड होती हैं, ऑल टेक्निकल ड्राइंग्स, बिकॉज हम उन्हीं ड्राइंग्स के साथ काम कर सकते हैं. सो दैट इज़ द वे वी वर्क. And so एक बार renders बन जाते हैं, then we move on to the BOQs, which are bill of quantities, and then we kickstart the project on turnkey basis. Mostly मेरे projects सारे turnkey हैं, क्योंकि client को लगता है कि एक ही आदमी से deal करना है, right from foundation to the last, so it becomes a lot easier for both sides to work like that. And then there are timelines and there are deliverables according to the timeline, according to the budgets. Everything is pre-decided. So they are very comfortable that they know at the end of the day this is what they're going to get and this is what they're going to be doing, and spending. And we also know that this is the timeline, this is the design, these are the BOQs, these are the specifications. We have to work well along with it. Now this is our sourcing, how we can bring it down and increase our profits, but at the same time no compromise on materials and quality. तो जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप कौन सी चीज़ मतलब ध्यान रखते हैं, मतलब कि which is very important जब शुरू करने से? सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स. लाइक जैसे मैंने आपको बोला कि एक डिज़ाइन का, एक अच्छे प्रोजेक्ट का बैकबोन ही ड्राइंग्स होती हैं, और ड्राइंग्स जो होती हैं, ड्राइंग्स के साथ साथ फिर आपके प्रोडक्ट्स आपने क्या यूज़ किए हैं, आपने मटेरियल्स क्या यूज़ किए हैं, and you kind of bring out in terms of the art, you bring out in terms of the curios, you bring out in terms of the artifacts, because एक specifically घर पे जब आप बना रहे हैं तो घर चीज़ों से नहीं बनता, वो लोगों से बनता है. और लोग कैसे हैं, वो लोगों ने अपनी एक कोई उनकी जो उनके डिज़ाइन इथोस हैं या जो उनको कोई चीज़ पसंद आई है, उन्होंने कलेक्ट करी है. तो वो कलेक्शंस को हम कैसे डिस्प्ले करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उनका पर्सनल स्टाइल क्या है. So that's the way we kind of work. आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है इंटीरियर में? देखिए, ट्रेंड्स कीप चेंजिंग.
अच्छा। एज वाइज होता है। एक जो यंग बच्चा है उसको क्लासिक पसंद नहीं आएगा, लेकिन जो 50s एंड अबव हैं they've been there done that, so they have traveled, they're well heeled people. At the end of the day they have, you know, they are more muted, they're more classic, they're more neutral, so that is the style that they like. The young like the modern, so we have to work with everyone. We can't say that, you know, no we don't this thing, जिसको जो पसंद है। तो इस प्रोफेशन में मैम सबसे ज़्यादा चैलेंजेस किस चीज़, मतलब सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आते हैं आपको? देखिए चैलेंजेस तो ऐसे हैं कि क्लाइंट्स को कई बार नहीं समझ आता, तो उनको लगता है कि जहाँ तो ट्रस्ट है वहाँ तो सब कुछ है, वहाँ तो फैंटास्टिक। तो आप पहले ड्राइंग्स वगैरह सब पहले अप्रूवल करते होंगे? Yes, everything has to be approved on paper. Every BOQ has to be approved. Contracts have to be signed. And what about the government projects? Yeah, so government projects are mostly, I don't go in for tenders. Government projects are mostly on, I win them, or they are called. So in that case, you have to be approval for this thing also, की approval की नहीं, उधर भी सेम प्रोसेस तो सेम ही है। अच्छा। हाँ, वहाँ भी वही है, क्योंकि वहाँ इनविटेशन पे है। अगर गवर्नमेंट मुझे बुला रही है कोई काम करने के लिए, तो उनको मेरे में कुछ नजर आ रहा है या कुछ उनको लग रहा है कि यस आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट। तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट इजी है क्लाइंट या गवर्नमेंट के जो आप टेंडर या ये? नहीं, मैं टेंडर में तो कभी भी नहीं जाती। या कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर रहे हैं? हाँ, जो डिपेंड करता है। देखिए गवर्नमेंट में अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में उनके टाइमलाइंस हैं, उनके बजट्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत टाइट होते हैं जी। तो हमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स को भी, यू नो, वी हैव टू बी सेंसिटिव टू दोस कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज दे कांट डिविएट। एक चीज़ चेंज करने के लिए इतना लंबा प्रोटोकॉल होता है, सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द बिगनिंग। प्राइवेट में ये है कि अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि उनके अपनी बजट्स हैं, उनके अपने टाइमलाइंस हैं, और एक बारी हमने जो चीज़ दे दी तो वो है। कई बार क्या होता है, घरों में लोग बड़े फिकल माइंडेड हो जाते हैं, उनके इतनी बड़ी फैमिली है, फिर वो अंकल आ गए, फिर वो भैया आ गए, फिर हमने उनके घर में ये देखा, तो वो प्रोजेक्ट्स नॉर्मली दे बिकम अ रिफ्रैफ। जब आप अपने क्लाइंट के साथ और अपने एक प्रोफेशनल के साथ आप काम करते हैं, वो और ट्रस्ट में है दोनों, और एज अ टीम आप काम करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट कभी भी गलत नहीं होता। देखिए, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, इफ यू टेल द डॉक्टर दैट आई हैव गूगल्ड इट, आई हैव रिसर्च्ड इट, बट यू नो यू मस्ट कट हियर एंड नॉट हियर, 2 इंच आप इधर काटिए, तो डॉक्टर विल प्रॉब्ली आफ्टर बियॉन्ड पॉइंट विल गिव यू द स्कैपल के आप खुद ही कर लीजिए अपनी, आपको मेरे से ज्यादा मालूम है। सो इफ यू गो टू अ प्रोफेशनल, प्लीज ट्रस्ट द प्रोफेशनल। हमारे यहाँ क्या होता है कि आप पिंटरेस्ट है, गूगल है, AI है, GTPT, आप अरे हमने ये वहाँ से कॉपी दिया, मैं किसी के घर गए थे तो हमें ये पसंद है, दैट इज नॉट, वो उनका घर है, वो उनकी सेंसिबिलिटी है, आपकी सेंसिबिलिटी अलग है, आपका डिजाइन इथोस अलग है, आपका प्रोफेशनल अलग है। सो यू, हर एक आदमी इंटीरियर डिजाइनर को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उन लोगों को क्या टिप देंगे कि अगर खुद से ही अगर वो कर रहे हैं, अपने घर को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो क्या टिप आप उनके लिए दे सकते हैं कि इस चीज़ का ध्यान रखें या इस तरीके से करें? तो कुछ है आप अगर? देखिए, नॉर्मली जब घर करते हैं और थोड़े बजट्स आर इशू, फिर भी मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, द बेसिक्स रिमेन द सेम, कि जो आपने करना पेपर पे कर लीजिए। आप पहले सब कुछ डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को ये सोफ़ा चाहिए, मेरा ये बजट है, मेरे को ये कलर स्कीम चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चीज़ यहाँ आएगी, ये चीज़ यहाँ आएगी, इसको मैं ऐसे एक छोटा सा स्केच बना लीजिए, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर के पास आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और आजकल तो, एंड लाइक आई सेड, सबसे बड़ा गुरु गूगल है, पिंटरेस्ट है, तो आप उस पर जा सकते हैं, एंड आप यू कैन चूज एंड देन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। तो पायल जी, सबसे वैसे एक और बात है कि मेन, जैसे आम तौर पे लोग इंटीरियर डिजाइनिंग में कौन सी गलती करते हैं, जो मतलब ज्यादातर आप नोटिस करते हैं कि ये कॉमन जब आप किसी को कॉमन कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप किसी गूगल या पिंटरेस्ट से कोई चीज निकाल के चाहते हैं कि ये मेरे यहाँ भी ये चीज बन जाए, वो कट पेस्ट वाला। कॉपी पेस्ट इज समथिंग व्हिच इज वेरी डेंजरस। जी जी जी। तो 5 साल के बाद मतलब आप कैसे देखते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे होगी? अभी ही इतने चैलेंजेस हैं, अभी जब हमने किया था तो गिने चुने, competition to the pinnacle is very very tough. See, as you rise up the ladder and the pinnacle becomes narrow, exactly. So what happens is that the competition is tough, so the best of the best kind of make it up there. So the best will always stand out, the best will keep improving, and yes, like I said, that you have to not impose yourself, you have to go hold your client, and every project is unique. देखिए, अब जो मैं राजस्थान के लिए कर रही हूँ, I cannot थोपो a modern concept in it, और मॉडर्न में मैं राजस्थान नहीं घुसाड़ सकती, right? Like, तो you have to do your research,
You have to be very good as a thorough professional. पहले हम भी काम करने से पहले, when we put the pen down onto our computer, what is very important for us is that we do our own background research. What is the client wanting? What is it that we, हमें भी टाइम लगता है, हम सीधा ऐसे नहीं शुरू हो जाते हैं, हमें भी काफ़ी रिसर्च चाहिए, हम भी एज अ टीम बैठते हैं, कलर स्कीम्स, मूड बोर्ड्स, what is the concept, what is the ceiling that we want to do, how do we incorporate that with the flooring, how do we integrate that with the furniture, what is the kind of a mood board, what are the materials we are planning to use, so वो सब हम डालते हैं, what is the architecture all about, what is the outside all about, how do we bring out the landscape, so ये सब चीज़ें हम करके फिर हम बनाना शुरू करते हैं. Well, in the end बस मैं ये और पूछूंगा आपसे कि जो आजकल की नई जनरेशन है वो उनके लिए कोई अगर आप टिप दें कि भाई जैसे एज अ अभी बच्चे जैसे ग्रेजुएट होके आए तो कैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कौन सा स्कूल या कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है, कहाँ से वो शुरू करें, और उनके लिए कोई, और जो कोर्स कर चुके हैं उनके लिए अगर कोई ख़ास टिप हो तो प्लीज़ ये बताएं कि MFA था, BFA था, अभी तो डिप्लोमा कोर्स भी है, 1 महीने का, सॉरी 1 साल का है, 6 महीने का है, सभी तरह के कोर्सेज हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे जितने भी बच्चे हमारे पास इंटर्न्स के लिए आते हैं, इंटर्नशिप के लिए आते हैं, मेरे को यही लगता है कि दे आर जस्ट नथिंग देयर एक्सेप्ट बेसिकली जस्ट गुड ड्राफ्ट्समैन. तो यू आर लाइक अ कैनवस विच इज़ सो लेट अस पेंट ऑन इट, ओके, एंड वील होल्ड योर हैंड एंड वील टीच यू. तो हमें लोगों को ये फैलेसी है कि इंटीरियर्स इज ऑल अबाउट यू नो पर्दे, furniture. No, that is not what interiors is. That is soft fit outs. That is a job of an interior decorator. When you come to people like us who are interior architects, it's a whole concept altogether. So जब आप आते हैं तो come with a very open mind. देखिए जब हमने भी शुरू किया हमारी सैलरी 1000 रुपए थी जी, right, and we've kind of this thing. So शुरू में वो आते हैं पैसे देखते हुए कि हमें कितने पैसे मिलेंगे. अगर आप पैसे देख के आ रहे हैं तो मतलब आप सीखने नहीं आ रहे हैं, आप सिर्फ एक उस कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं. अली, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी आपने टिप्स दी, आपने अपना कीमती टाइम निकाला एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच, थैंक यू. तो दोस्तों अगर आपको पायल जी के आइडियाज़ इंस्पायर करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा. दोस्तों मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, टाइम विद अमर ये चैनल आप लोगों का है. तो जितने भी टैलेंटेड लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरे को कांटेक्ट करें, मैसेज करें, मैं आप लोगों के पास आऊँगा. जो भी आपका टैलेंट है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं दुनिया के आगे रखना चाहता हूँ. टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर.